Could you please tell us a bit about your business? Basically, we are in civil and interior turnkey contracting business, Okay. and mainly we are working with corporate like Reliance, L&T, Okay. some government organization. Corporates and we are not in the private residential job and all that thing. Okay. We are still working with the Oberoi and builders and all, LTR, LTR. So when you say turnkey contractor, what all would come in that scope of work? Turnkey means we are constructing building also, Okay. and then after construction, sometimes they are asking for the finishes of civil item like flooring, ceiling, partition, Okay. doors, Mm-hmm. and we have a furniture manufacturing unit also. Okay. So we can provide them modular furniture, but Right. mostly for the commercial project, not for Right. residential. Right. So we can give them the turnkey means lock and key also. Once they have a plot, Right. we can give him a From lock and start key. to the end, everything involved. Yeah. Okay. Alright. So it's been pretty long since you've been in this. Last 30 years we Wow. are in this Wow. industry. So what would you say was the one factor which got you into this business 30 years back? Basically, we are in a partnership business. Okay. So my two other partners are in Bharuch. Basically, Okay. my native place is Bharuch. Okay. They are doing some construction and all building Right. business. Right. So once upon a time, they got the opportunity. Some of their clients required some furniture and all these things. Okay. So they brought some furniture from Delhi and they make some exhibition in the company where the GNFC. Okay. There's a big colony, residential colony over there. They established one exhibition type of there, and for that they got the idea. Okay, why we are not starting this furniture manufacturing and interior business also? Right. So So you started with furniture manufacturing first. then they think about Surat. Surat is a quite bigger city than Bharuch, and one of my friends is also there. Okay. So we all together planned for the shifting to Surat, and I was in another business, but as a friend, we are a school time friend. Okay. So they proposed me also. Why don't you join us? Right. Then I decided, okay, let's go with the friends and. Otherwise, in my career, this is start because of my partner only. Okay. Because my father's business is some grocery shop and all that. Okay. So that was your previous business? Yeah, I was not in my father's business. Okay. But I have started with them as Right. this furniture and interior. So before you started with the two partners, you said you were already in some other business. Yeah. What business was that? ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड वो बिजनेस ऐसा था कि वो मेरे पार्टनर्स का जो भी मेरे पार्टनर उनके फादर्स का बिजनेस था. अच्छा. और मैंने मतलब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कुछ छोटे मोटे बिजनेस किए और मैं फिर गवर्नमेंट जॉब में भी था. अच्छा. लेकिन मैं कुछ बिजनेस ढूंढ रहा था और वो लोग कुछ उनका एक यूनिट बंद कर रहे थे. तो मैंने उनको प्रपोज किया कि आप बंद कर दो तो मैं रन करने ट्राई करता हूँ. 3 साल मैंने चलाया और उसमें भी मैं काफ़ी सक्सेस था. लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये फ्रेंड लोग सब सूरत जा रहे हैं और वो ब्रिक्स बिजनेस से बेटर वाइट कॉलर बिजनेस है और सब साथ में रहेंगे. Okay. So if you could help us take us through the journey of this 30 years. It's been a pretty long time. Okay. I think you're one of the older players in the industry. Yeah. So if you could बेसिकली हमने सूरत पहले जाके वन ऑफ माय पार्टनर इज अ डिज़ाइनर. इज नॉट अ क्वालिफाइड डिज़ाइनर बट ही इज हैविंग इंटरेस्ट इन इंटीरियर बिजनेस. तो पहले हमने सूरत में कुछ रेफरेंस से प्राइवेट डायमंड्स वाले जो वहाँ थे, जो उनके ऑफिसेस, उनके रेसिडेंस वगैरह
1-2 साल हमने 2 साल तक वो काम किया। ओके। और वो काम में एक इश्यू ऐसा था कि वहाँ लोग प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम था कि कंसल्टेंसी बिजनेस जो हम कर रहे थे तो कंसल्टेंसी 5% फीस दे देते, उससे ज़्यादा तो खर्चा आता था ऑफिस वगैरह चलाने। लेकिन बाकी सब जो सेम बिजनेस करे उनको पूछा कि आप कैसे सर्वाइव करते हो 5% फीस। कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, मतलब उनका घर बनाना है तो पूरा मटेरियल लेबर वगैरह जो भी होगा उसके ऊपर 5% अपने को फीस मिलता है। बट आपको प्रोजेक्ट मैनेज करना, हाँ, टोटल सब कुछ हमें मैनेज, डिज़ाइन हमें बनाना है, मटेरियल हमें प्रोक्योरमेंट करना है, लेबर प्रोक्योरमेंट करना है, काम एग्जीक्यूशन करना है, उसके सुपरविजन सब कुछ हमारे स्कोप में रहता है। वो क्लाइंट तो क्या डायमंड का व्यापार है, उसको नहीं, वो अपना फ्लैट नया खरीदा या ऑफिस नया खरीदा तो देखा, ठीक है, उनको दिखा देंगे उनकी रिक्वायरमेंट, उनको समझा देते कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, तो उस बिजनेस में क्या था कि 5% फीस, मतलब उनको ऐसा लगता था कि तो 5% से ज़्यादा तो खर्चा आता है। लेकिन बाकी अदर्स जो हमारे सेम लाइन वाले उनको पूछा आप कैसे इसको सर्वाइव करो, तो बोलता है कि वो फीस तो मिलता है लेकिन बाकी जो मटेरियल वगैरह में जो कमीशन वगैरह मिलते हैं उससे, तो वो एक टाइप का मतलब माइंड में आता था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, गिल्टी माइंड फिरता। तो उस दरमियान हमें हमारा एक फ्रेंड था जो भरूच से फ्रेंड था, वो रिलायंस इंडस्ट्री हजीरा में कुछ प्रोक्योरमेंट या कॉन्ट्रैक्ट डिवीज़न में था। वो कभी आया कि यार मेरा कुछ छोटा मोटा काम है, वो जो हजीरा है वो सूरत से 18-20 किलोमीटर दूर था। अच्छा। और वहाँ जाके कोई सूरत का कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए रेडी नहीं था छोटे मोटे काम के लिए। तो उन्होंने बोला यार आप मेरा छोटा मोटा काम करवा दो, तो हमने करवा दिया। फिर उसने बोला कि यार हमारे पास तो बहुत काम होते हैं, आप हमको क्यों, मतलब हमारे साथ काम क्यों नहीं करते हो। धीरे धीरे उनके साथ काम किया, फिर वो हमको कॉर्पोरेट कल्चर हमारे सूट कर गया, क्योंकि उसमें सब कुछ वाइट का काम होता है, चेक से काम होता है, उसमें 2 नंबर का कोई बिजनेस होता नहीं है, हमको बहुत सूट कर गया। और फिर हम लोग उसमें हजीरा में काम करते थे, तो उसके साथ साथ में उसी बेल्ट में NTPC था, SR था, इटको था और ONGC भी था, गेल था। तो वो सभी कंपनियों को फिर हमें अप्रोच करना चालू किया। धीरे धीरे हमारा टर्नओवर बढ़ने लगा। ये हमने जो काम किया, फिर हम बाहर के भी अहमदाबाद IIM का काम करते थे, हम टेंडर भरना चालू किया, तो धीरे धीरे चालू किया। फिर हम लोग 2004-5 में हमने मतलब 2000 में हमने हमारा कुछ खुद का ऑफिस लिया, उसका इंटीरियर करके, तो तब तक हम एस्टेब्लिश थोड़े हो चुके थे। फिर 2004-5 में हमने सोचा कि हमें मॉड्यूलर फर्नीचर का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर उसी का था। हाँ। फिर उसके लिए सोचा कि भाई अगर मॉड्यूलर फर्नीचर करना है तो इंडिया लेवल पे करना चाहिए, और इंडिया लेवल पे करना है तो फैक्ट्री बॉम्बे में होना, मुंबई में होना जरूरी है। और इन बिटवीन क्या था, 2000 से 2004-5 तक हम लोग बॉम्बे में रिलायंस के काफ़ी प्रोजेक्ट करते थे। हमको एक गेल का कंस्ट्रक्शन का भी प्रोजेक्ट मिला था यहाँ पर बेलापुर में। अच्छा। और हमारा एक गेस्ट हाउस ऑफिस सब नवी मुंबई में एस्टाब्लिश था ही। तो फिर हमने जब मॉड्यूलर फर्नीचर का फैक्ट्री बनाने का प्लान किया, तो हमने फिर ये जगह लिया जहाँ हम वक्त बैठे हैं। तो जगह लिया, हमने बिल्डिंग बनाया वगैरह करके हम तीनों पार्टनर बॉम्बे शिफ्ट हो गए। ओके। और सूरत में ऑलरेडी जो हमारा मतलब हमारे साथ काम करते थे, वो 2 लोगों को पूरा सूरत ऑफिस का ऑपरेशन हम कंट्रोल के अच्छे से संभाल, और धीरे धीरे करते बस अभी बॉम्बे में आके हमने मॉड्यूलर फर्नीचर के साथ साथ हमने बहुत सारी रिलायंस के और दूसरी कंपनियों का कॉन्टेक्ट करके काम, मलबार क्लब का भी काम किया। ऐसे मतलब टेंडरिंग का काम हम लोग ज़्यादा करते हैं। सर मॉड्यूलर फर्नीचर कौन से हमने मॉड्यूलर फर्नीचर में हमने मतलब हमारा कोई ब्रांड नेम नहीं, हम लोग कस्टम मेड बनाते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, टेंडर आते हैं, उसमें बहुत सारा कुछ फर्नीचर बनाना होता है। और बेसिकली रिलायंस वाले भी इंसिस्ट कर रहे थे कि आप मॉड्यूलर फर्नीचर बनाना। तो जामनगर में पूरी कॉलोनी, जो उनकी इतनी बड़ी कॉलोनी, पूरे कपबोर्ड वगैरह है वो हमारा बनाया हुआ है। और अभी हम LNT का भी काफ़ी बड़ा 3000 वर्क स्टेशन का, लेकिन हमारी कोई ब्रांड नहीं है। अच्छा। लेकिन हमने क्लोवर के साथ, चाइना का क्लोवर करके बहुत अच्छी है, उसके साथ टाइप किया है। तो हमारा मतलब वो क्लोवर BH क्लोवर प्लांट ऐसा हम लोग मतलब ओके। बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड, ऐसा ब्रांड को प्रमोट किया ऐसा नहीं है, हम लोग कस्टम मेड ही बनाते हैं। अच्छा।
सो फॉर प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट में सूट करे, हमारी कोई उसके प्रोडक्ट भी according- नहीं है कि भाई ये कपबोर्ड हम ऐसा Right. बनाते हैं, हम बेड बनाते हैं, ऐसा नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाते हैं हम। बेसिकली अभी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जो मैक्स वगैरह के जो अपने रिटेल शोरूम उसमें हम उनकी जो रिक्वायरमेंट है, रैक वगैरह, टेबल Right, वगैरह, जो उनकी right. रिक्वायरमेंट है वो पूरा फर्नीचर हम लोग देते हैं। अच्छा, सो दिस वाज 2005 में आपने फर्नीचर का भी शुरू। हाँ, वो एक Integrate मतलब कर हमारा दिया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन की नो हाँ। ऐसा भी की नो, तो वैसा हाँ। हमने स्टार्ट किया। लेकिन बेसिकली हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ हमारा। हम अच्छा। लोगों ने 7-8 साल पहले से थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी हमने टर्नओवर बढ़ाने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब एकदम बिल्डिंग बनाने का। पहले हम लोग Right. कंस्ट्रक्शन करते थे लेकिन वो बिल्डिंग मतलब फाउंडेशन से नहीं बनाते थे, हाँ, ज़्यादातर फिनिशिंग में थे। जैसे कभी ब्लॉक और प्लास्टर का काम लिया, टाइलिंग लगाया। लेकिन फिर अभी बिल्डिंग हमने काफ़ी बिल्डिंग बनाए। हमने गोवा में एक हॉस्पिटल बनाया, राइट, हमने एक पूना में 2 लाख स्क्वायर फीट का पूरा बिल्डिंग टर्न की जो बोल रहे हो उसमें प्लॉट भी हमने अलॉटमेंट लिया, बिल्डिंग बनाया। उसमें एक फ्रांस की कंपनी को रेंट पे दिया, वो सब किया। हमने ये बिल्डिंग जहाँ बैठे वो भी हमने बनाया। फिर एक रबाले में हमने एक बिल्डिंग बना के शिप्ला को भाड़े पे दिया है। अच्छा, हमारा एक अभी जयपुर में IT पार्क बन रहा है पूरा 2 लाख स्क्वायर फीट का। हमने काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें फर्स्ट फेज में 2 लाख फीट कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा हमने मतलब रिलायंस के लिए MP में मतलब प्रीफैब स्ट्रक्चर भी बनाया अच्छा। काफ़ी कंस्ट्रक्शन के भी काम किया। सो ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी फ्यू इयर्स में आपने आपका प्रोफाइल में स्कोप बढ़ाया, कंटिन्यूसली केप्ट इंक्रीजिंग। टर्नओवर बढ़ाने के लिए प्रोफाइल में स्कोप इसलिए बढ़ाना पड़ता है कि भाई अगर आपको एक ही चीज़ को पकड़ के बैठते हो तो हो सकता है कि उसमें आपका टर्नओवर जितना आप चाहते हो उतना काम नहीं मिले। बेसिकली हमारा क्या पहले से मार्केटिंग बहुत कम था। अच्छा, हम लोग टेंडर पेपर में आते हैं या ऑनलाइन देख के या हमारा रेफरेंस है, क्योंकि हमको काम से कम हुआ। हम रिलायंस से लास्ट 30 ईयर से कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। अब जैसे हमने IIM अहमदाबाद के साथ काम किया तो 6-7-8 साल तक कंटिन्यूस काम किया। अभी हम LTR से काम कर रहे थे तो 5-6 साल से कर रहे, तो हम लोग को रिपीटेड ऑर्डर ज़्यादा आता है। राइट, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, और हमने कभी मार्केटिंग के लिए इतना कुछ किया नहीं है। राइट। अभी हम लोग मतलब टर्नओवर मतलब बढ़ाने का काफ़ी एग्रेसिवली ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा बड़े प्रोजेक्ट लेने का और थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्राइस में भी लेते हैं, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो, लेकिन टर्नओवर बढ़े, कंपनी का स्पान बढ़े। राइट, अभी बहुत सारी कंपनियों के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी स्टर्लिंग विल्सन से हमने काम लेना चालू किया तो 4-5 ऑर्डर क्वेरी है उनका। अच्छा, GSIDC गोवा में भी हमने 3-4 प्रोजेक्ट किया, उनका एक फॉरेस्ट हेडक्वार्टर का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम किया। राइट। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई अब geographically हमारा भी- प्रोफाइल में स्कोप ऑफ वर्क भी बढ़े और हमारा क्लाइंटेज भी बढ़े। राइट, तो क्या है, कभी ना कभी आपको मतलब टर्नओवर बढ़ाने के लिए, अभी जैसे एक रिलायंस में कर रहे थे तो रिलायंस का डेवलपमेंट बहुत हुआ। रिलायंस के डेवलपमेंट के साथ साथ ही हमारा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन सिर्फ रिलायंस में भी ऐसा था कि उनके पास और भी कॉन्ट्रैक्टर थे और हमको भी वो 2-4 ऑर्डर देने के बाद सोचेंगे कि डेकोरूम वाले बहुत बिजी हो गए या बहुत Right. ओवरलोडेड हो गए। ऐसा एक्चुअली है नहीं। हमने जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा खुद का भी स्टाफ, बैक ऑफिस सब हमने एक्सपांड किया। तो आज 10-12 कंपनी ऐसी है कि जहाँ से हमको रेगुलरली रिपीटेड इंक्वायरीज ऑर्डर वगैरह मिलता रहता है। वो और हम बढ़ाना चाहते हैं हमारा स्पान, ताकि हमको टर्नओवर जो एक 20-25% एवरी ईयर बढ़ना चाहिए, राइट। वो टारगेट में तकलीफ नहीं हो। So this year's again the target is 25%. दिस ईयर तो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कोविड की वजह से, लेकिन एवरी ईयर हम लोग सोचते हैं कि ये साल तो हमारा मतलब टारगेट ये है कि हम लोग लास्ट ईयर को मेंटेन कर ले तो भी बहुत है। Right. So I would call it that you've been quite successful in your field. बोल सकते हो। In our perspective, तो अब आपके लिए एक की सक्सेस फैक्टर क्या आप कहेंगे कि आपका सक्सेस का रीज़न, one small thing which was the key reason कि आप that enabled you to reach where you reached today? एक पर्टिकुलर की रीजन से हमारे ख्याल से कोई सक्सेस नहीं होता है, लेकिन एक बेसिक बात है कि हमने ऑलवेज मतलब हम लोग जो तीन पार्टनर हैं वो कंटिन्यूसली बिजनेस के लिए बहुत ही मतलब इन्वॉल्व है। Right. हमने बहुत सारे मतलब हार्ड वर्क भी किया है। हमने
हमने कभी कभी भी हमारे बिजनेस से फोकस नहीं हटाया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर रिलायंस जैसी कंपनी से रिपीटेड 30 हमने ऑनेस्टी से बहुत काम किया। हमने कभी क्लाइंट को चीट करने का नहीं, और हमने हमारे आप जैसा बताया ना कि हमने अपग्रेड करने की हर लेवल पे कोशिश की। प्रोफाइल में नया काम करने का, नया क्लाइंट का मतलब क्लाइंट को भगवान समझ के चलते हैं। क्लाइंट इज गॉड। उनकी कोई भी बात है तो ठीक है हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन वो इस तरह से भी फाइनली क्लाइंट जो बोले उस हिसाब से मोल्ड होने का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर के जो क्वालिटी होनी चाहिए। कभी हम किसी से कुछ भी झगड़ा कर ले, कुछ भी ईगो रख के, ऐसा बिजनेस डेवलप नहीं होता। आदमी को डेवलप होने के लिए मतलब अच्छे रिलेशन, अच्छा क्वालिटी वर्क देने का, ऑनेस्टी, टाइमली। हमने मतलब बहुत ही मतलब एकदम टाइम बाउंड जॉब काफ़ी किया है। वो जो रिलायंस की सबसे बड़ी डिमांड है कि टाइम बाउंड क्वालिटी में और प्रॉपर काम करने का, वो हमने किया। हमने हमारे एम्प्लॉय को भी बहुत सारे लोगों एम्प्लॉय को मेंटेन किया है। मेरे पास 25-25 साल पुराने एम्प्लॉय है, उनका भी हमारे साथ साथ मतलब साथ में उनका भी प्रोग्रेस होना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना। So I think if I summarize, my major take back would be कि आपका starts with your values first. Yeah. That is what वो led you to मतलब हम लोग जो कुछ भी मतलब ऑन किया या जो भी हम सक्सेस, उसमें हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि हमने ये सब कुछ किया, उसमें कभी कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो क्लाइंट भी हमारे थे कि उसने हमारी वो चीज़ को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कभी ऐसी मजबूरी में हमें नहीं डाला कि हमें गलत करके कमाना पड़े। उन्होंने भी हमको जेन्यून रीजनेबल नेगोशिएशन करते थे, लेकिन एक रीजनेबल मार्जिन दिया। और हमने भी लालच नहीं किया ज़्यादा कमाने की। हमने ज़्यादा कमाने के लिए यही सोचा कि हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इजी वे से अर्निंग करना वो शॉर्ट टर्म में कर सकते हो, 1-2 बार, बाकी आपको लॉन्ग टर्म में रन करना है तो यू हैव टू बी मतलब ऑनेस्ट ओनली, नॉट कि हम कुछ चोरी नहीं, ऑनेस्ट। हम काम करने में भी ऑनेस्ट थे कि हम जो क्लाइंट को भी झूठा बता दें, हमने कभी फ़ोन नहीं उठाया या कुछ भी फालतू रीज़न दिखाया, ऐसा कभी नहीं किया। अगर कोई तकलीफ है तो कोई क्लाइंट के सामने फेस किया कि सर ये प्रॉब्लम है और हम कर देंगे। हमने किया ऑलवेज। कोई चीज़ में हमने मतलब रात भर भी काम करके, खड़े रह के भी काम करवाए। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं, लेकिन हमने बहुत टाइम मतलब साइड पे खड़े रह के काम करवाए। So I think your values and your client importance and satisfaction to us. We spoke a lot about कि आपने what right things happened in your career which led you to reach, but would there be some mistakes also that would have happened, natural mistakes that you feel today after 30 years कि शायद ये avoid कर सकते थे, अगर या कोई ऐसा मिस्टेक जो अवॉइडेबल हम कह सकें? ऐसा तो कोई हमारे साथ मतलब ऐसा कि याद रह जाए कि भाई ये बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक बात है कि हम लोग जो 30 साल के बाद यहाँ पहुँचे, हाँ, या तो हम ये स्टेज पे जल्दी पहुँच सकते थे, या तो हम यहाँ से कभी कहीं आगे जा सकते थे। उसमें एक मिस्टेक ऐसा लग रहा है कि हम जो आप बोल रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जितने मतलब एफर्ट्स लगाने चाहिए, उसके थोड़े ये भी था कि हमारा जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा हमने फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बढ़ाई। लेकिन हम अगर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस अभी जो स्पीड पकड़ी है, जो अभी जो एग्रेसिवनेस है, वो 5 साल पहले करते तो थोड़ा सा रिजल्ट, बाकी ऐसा कोई रिग्रेट हो या ऐसा कोई मेजर मिस्टेक नहीं हुआ है। ओके। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग में ऐसा है कि आप थोड़ा अगर प्रॉपरली आपने कोट दिया है क्लाइंट को, अगर आपने उसमें काम पे पूरा ध्यान दिया है और आपके कुछ चोरी चकारी नहीं होती है, तो आप एक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लेकिन कुछ ना कुछ कमाते हो या कभी ब्रेक इवन होता है। बाकी अदरवाइज 1-2 मिस्टेक ऐसी थी कि कुछ क्लाइंट को हम लोग ज़्यादातर ये चाहते हैं कि हमारा पैसा सेफ हो, ऐसी कंपनी से काम करते हैं। लेकिन 1-2 कंपनी में काम किया, वहाँ पैसा डूबा, वो कोई मेजर मिस्टेक में नहीं कंसिडर करते। पार्ट ऑफ द मिस्टेक यही है कि हम लोग ये मतलब 5 साल पहले अगर इतना एग्रेसिव जब शुरू किया तो शायद वो बेटर पोजीशन में। ओके।
आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिंस यू सेड दैट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आप इट्स ऑलवेज ऑन लाइक यू ट्राई टू मेक श्योर इट्स ऑलवेज ऑन टाइम सो इफ वी कॉल इट एज अ स्विफ्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वो मेंटेन करने के लिए इज देयर एनी मेथोडोलॉजी दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइक हर कंपनी का एक तरीका होता है सो देयर वुड बी सम स्पेसिफिक दैट यू ऑल फॉलो देखो हमारे केस में ऐसा है कि हमारी मेथोडोलॉजी तो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ऐसा है कि हम लोग जो रिलायंस या कॉर्पोरेट कंपनी से काम करते हैं उनकी इंजीनियरिंग टीम होती है और वो लोग साइट पे क्वालिटी, क्योंकि ड्राइंग्स उनके रहते हैं तो ड्राइंग के हिसाब से क्वालिटी से काम होता है, वो लोग भी चेक करते हैं और वो लोग टाइमली काम कराने के लिए प्रेशर भी रखते हैं। लेकिन उस दोनों चीज़ उनको सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे साइट इंजीनियर भी मतलब इतने ही उनको प्रॉपर रखना पड़ता है और टाइमली एग्जीक्यूशन होता है। और पर उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग रेगुलरली हमारे साइट के प्रोजेक्ट मैनेजर के कांटेक्ट में रहते हैं। दिन में या ऑर्डर डे हम लोग 40-45 मिनट पूरा साइट का हम लोग रिपोर्ट लेते हैं। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि हम क्लाइंट के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। अगर साइट का प्रोजेक्ट मैनेजर उसके पास मेरा मोबाइल नंबर, मेरी उनसे बात रेगुलर होती है तो क्वालिटी अगर कहीं मिस होती है तो वो लोग हमको इमीडिएटली बताते हैं। और हम लोग हमेशा से ये मतलब रहे कि हमारे जो वर्कर है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वो भी हम लोग अच्छे काम करने वाले, हमारे पास उनको भी साइट प्रॉपरली पेमेंट करते हैं, उनके बिलिंग प्रॉपरली होती है, उनको पैसा टाइम पे मिल जाता है। तो वो भी हमने जो अच्छे हैं उनको ही मेंटेन करके रखा है। थोड़ा महंगा भी पड़ता है लेकिन हमने एक माना है कि अगर हमारे रिलेशन ठीक है कि मैं 30 साल से काम करता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमको एकदम क्लियरली मालूम है कि हमारी क्वालिटी अच्छी है तो क्लाइंट हमको रिपीटेड ऑर्डर देगा। जिस दिन क्वालिटी हमने अगर क्वालिटी और टाइमलाइन नहीं मैच किया तो हमको धंधा ही बंद करना पड़ेगा। इसके लिए हम बहुत अलर्ट है और इसके लिए बहुत सारे मतलब एफर्ट्स लगाते हैं। और हमारे जो इंजीनियर वगैरह हैं वो भी हमारे साथ बहुत पुराने हैं, वो लोग भी क्वालिटी के लिए इतने ही हैं। खास करके जो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर सुनील भाई भी क्वालिटी के लिए बहुत कॉन्शियस है और वो किसी भी हालत में हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे कोई भी इंजीनियर से या लेबर में उसको तुरंत रिप्लेस कर देते भाई तुम नहीं चलोगे। So I think my takeaway in this would be कि you make sure कि एक तो communication happens on time, whatever the status is client तक वो पहुँचता है। कुछ भी issue हो तो resolve तभी का तभी हो जाता है। Day to day you have to touch with your site and site people, either client और आपके जो भी हम लोग अभी तो ज़्यादातर डेली व्हाट्सएप पे पिक्चर आते हैं, उसमें हम लोग माइन्यूटली मतलब जो चीज़ इतने साल के बाद पता चल गया कि भाई अभी फ्लोरिंग हो गया तो क्या प्रॉपरली होना चाहिए, वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए, लाइन मिलना चाहिए, नीचे बराबर से प्रॉपर बेस प्रिपरेशन होना चाहिए ताकि टाइल्स फोकल नहीं हो जाए, टूटे नहीं, तो वो सब चीज़ें अभी क्राइटेरिया। और अभी तो हर साइड पे क्वालिटी इंजीनियर भी रहता है। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो कि आप यू नो एग्जैक्टली कि क्लाइंट का ये नीड्स है उसके हिसाब से आप सेट करते हो। क्लाइंट की नीड नहीं भी हो, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं कि हाँ जल्दी कर दो, लेकिन इट डजंट मीन्स कि तुम कुछ भी दे दो वो एक्सेप्ट भी कर ले, वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो तो हमारे साइट इंजीनियर और लेबर को ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी और कल ना क्वालिटी कभी ना कभी बोलेगी कि आप अगर मान लो काम करके निकल गए, पैसा भी आ गया, लेकिन 1 साल बाद टूटेगा, खराब होगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं लीकेज होगा, कोई भी आपका काम देखेगा। क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट जो बड़ा नया क्लाइंट होता है और हमने को बड़ा ऑर्डर देने के लिए वो हमारे प्रीवियस एग्जीक्यूट किए हुए काम को देखने आते हैं, वो बहुत ही हाईली टेक्निकल पर्सन आते हैं। वो भी तुमको अगर तुम बोलो मैंने 2 साल पहले ऑफिस बनाए हैं तो वो देखेंगे कि 2 साल पहले तुमने जो कितना लाइन लेवल और क्वालिटी में काम, आपका काम बोलता है। अल्टीमेटली आपको प्रोफेशनल में कोई मतलब रिलेटिव से काम मिल जाएगा, कोई रेफरेंस से काम मिल जाएगा, रेफरेंस से इंक्वायरी मिलती है, काम तो आपकी काबिलियत पे और आपके रेट जो अपने नेगोशिएटेड रेट के ऊपर। सो जैसे आपने कहा टाइम और क्वालिटी, सो काफ़ी बार ये भी होता है कि टाइम और बजट का कंस्ट्रेंट होता है, लाइक विच इज़ अ नॉर्मल थिंग इन द प्रोजेक्ट। इनिशियली कभी कभी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट में होता था, लेकिन अभी हम लोग मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमको मालूम होता है। कभी कभी हम लोग कोई कंपनी में एंट्री लेने के लिए
बहुत ही कॉम्पिटिटिव कोई काम ऐसा है कि भाई चलो इसमें टर्नओवर बढ़ाना है, हम सोचते हैं कि चलो वो साइट का काम और ओवरहेड निकल जाएगा, भले हमारी जेब में कुछ नहीं आएगा तो हम काम ले ले, लेकिन ज़्यादातर हम लोग टेंडर बहुत ही मतलब प्रिसाइजली भरते हैं। राइट। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमने स्टील का कुछ रेट कंसिडर किया और रेट बढ़ गए, तो वो थोड़ा उसका जो एंड रिजल्ट है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस शीट है वो बिगड़ जाता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग जो टेंडर कोट करते हैं उसमें प्रॉपर रेट है, हम लोग लमसम में नहीं भर देते हैं। राइट। हर एक आइटम का कॉस्ट निकालते हैं, उसके ऊपर लेबर रखते हैं, उसके ऊपर सारे ओवरहेड कंसिडर करते हैं। हाँ, कभी कभी अगर आपको टाइमलाइन मैच करने के लिए थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है तो वो प्रॉफिट थोड़ा वीक कर देता है, बाकी लॉस नहीं जाता है। Right. So I think it's the precision that is While quoting. yes, दैट इज मोर right. Not just के ऑर्डर मिलने कभी के आपको बाद। हाँ, लेकिन पूरे ऑर्डर में कोई एका दो आइटम ऐसी हो जाती है कि हमने कुछ कंसिडर किया, फिर वो डिटेलिंग में कभी कुछ हमारे जो टेंडरिंग करने में मिस आउट कभी हो गया, Right. 5-25,000 50,000 लाख रुपए ज़्यादा जाता है, लेकिन वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। Right. हम लोग महीने में कभी कभी 10-10 टेंडर पोस्ट करते हैं, तो कोई टेंडर में कभी अगर कोई मिस्टेक रह गई स्पेसिफिकेशन समझने में, बीओक्यू में कुछ लिखा लेकिन उसके ड्राइंग डिटेल में कुछ और दिया, तो फिर रह जाता है। लेकिन वो बहुत बड़ा ऐसा नहीं होता है अभी तक। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने पूरा प्रोजेक्ट में लॉस कर दिया बहुत बुरी तरह से, ऐसा कभी नहीं होता। कभी कोई प्रोजेक्ट लंबा हो जाता है वेरियस रीजन से, कोई क्लाइंट का पास फंड नहीं है, साइड से अप्रूवल नहीं है, क्लाइंट कोई नहीं पड़ी है, तो फिर वो हमारे ओवरहेड बढ़ जाते हैं, तो हमारा वो प्रॉफिट कभी कभी वॉश आउट हो जाता है। Right. कभी 2-5% जेब से भी जाता है, तो ऐसा वो, लेकिन वो पूरे 30 ईयर्स में 5 प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ है। Right. वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अलर्ट तो रहना ही पड़ता है। अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकते Then it becomes risky. हैं। या And since you said that quality is something that आपने ही सेट किया है, not just the client's end. So how do you ensure कि आपके जो पार्टनर वेंडर्स होंगे जिनसे आप certain things आप शायद प्रोक्योर करते रहेंगे या कुछ सर्विस शायद देते रहेंगे, so वो प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लस DHIPL क्वालिटी वो मेंटेन करने के लिए is there any certain measures that you take care के your vendors follow those kind of levels of quality? एक्चुअली जब आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो तो सबसे पहले तो ऐसा होता है कि वो लोग जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन देते हैं वही यूज़ करना होता है। अगर उन्होंने स्पेसिफाइड किया कि आपको ग्रीन प्लाई MR ग्रेड खरीदना है, वो वही देते हैं। राइट। उसमें मुझे कोई मतलब अपना एक्स्ट्रा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, और वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। अगर उन्होंने लिखा है कि भाई आपको टाटा का स्टील लेना है तो वही लेना है, हेफले का फिटिंग लेना है, डोरमा का डोर क्लोजर लेना है, तो वो सारे स्पेसिफिकेशन होता है। इसमें हमको ज़्यादा प्रोडक्ट उनके स्पेसिफिकेशन से चलती है, लेकिन वो प्रोडक्ट का जो साइट पे एग्जीक्यूशन में जो उसको लगाना है, आप कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट, आप टाइल 100 की जगह 300 रुपये स्क्वायर फीट लगे, अगर उसको प्रॉपर आपने लगाया नहीं है तो वो कोई मतलब नहीं। ऐसा हर चीज़ में, अगर आप विनियर लगाते हो तो उसमें प्रॉपर उनकी बेंच मिलती है, लेमिनेट लगाते हो तो उसमें बबल नहीं आना चाहिए, राइट। सीलिंग लगाते हैं तो लाइन लेवल फिनिशिंग जॉइंटिंग वगैरह बराबर होना चाहिए। हर चीज़ में प्रोडक्ट तो हम लोग नॉन स्टैंडर्ड बहुत कम ही यूज़ करते हैं, बहुत कम ही यूज़ करना पड़ता है, लेकिन वो सारी चीज़ों को साइट पे इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसकी मेथोडोलॉजी भी होती है। कभी कभी बहुत चीज़ें जो में वो कंपनी का गाइड मतलब मैन्यूल होता है, मैन्यूल को देख के करते हैं। हम ट्राइवल का काम कर रहे हैं, वो काफ़ी बड़ा काम करते हैं, तो ट्राइवल के काम में सेंट गोविंद की जो कंपनी है, वो कंपनी के साइट जो टेक्निकल बंदे हैं वो साइट पे विजिट करते हैं, वो चेक करते हैं कि आपने बराबर से काम किया, वो सजेशन भी देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके मतलब बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। राइट। लेकिन प्रोडक्ट हमारे हाथ में नहीं होते, प्रोडक्ट तो उन्होंने स्पेसिफाइड किया वही यूज़ करना है, और प्रोडक्ट हम ये इंश्योर करते हैं कि हमको कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं देते, गलत नहीं, तो वो तो हम लोग डायरेक्ट कंपनी से, ज़्यादातर हमारा प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट कंपनी से या तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके कंपनी का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से। राइट। सो आई थिंक योर वेटिंग द वेंडर में आपका काफ़ी रिगरस प्रोसेस होगा कि सिलेक्टिंग द वेंडर्स ऑल्सो। नहीं, जो कंपनी के जो टेंडर में जो स्पेसिफिकेशन है, हाँ, उसमें मतलब अगर 2-3 है तो उसमें से हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे आपके साथ भी काम किया,
राइट। हमारे पास और ऑप्शन भी थे, लेकिन आपका फैक्ट्री विजिट किया, देखा तो इतना पेन तो लेते हैं कि हम जिसको काम दे रहे हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ खाली उसका प्रोक्योरमेंट है कि भाई हैफले का फिटिंग लेना, वो तो बन के ही फॉरन से आता है जहाँ जर्मनी। वो हैफले का वो मतलब उसमें हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, खाली उसका जो मॉडल नंबर वगैरह दे के ले लेते हैं। राइट। जैसे बोर्ड खरीदते हैं तो सेंट गोविंद के उनके जो स्पेसिफिकेशन जो लिखे होते हैं तो उसमें हमको क्वालिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, साइट पे आके कभी कोई बोर्ड डैमेज है या कुछ इश्यू है तो बाकी तो ज़्यादा इतना इशू नहीं है। आई थिंक इट्स ऑल्सो कि आप टेक्निकली उसको डिटेलिंग में काफ़ी जाते हैं। हाँ, टू वो अंडरस्टैंड टेंडर में लिखा होता है Right. कि भाई यही ही यूज़ करना, उन्होंने ही बहुत डिटेलिंग किया होता है क्लाइंट ने। Okay. Also, lastly, like I wanted to ask कि this situation that is right now, pandemic situation जो आया है, जो सभी face कर रहे हैं, so उससे कुछ challenges that you are facing? Yeah, definitely we are facing the challenge. कैसी challenges है हमको कि एक तो सारे लेबर्स यूपी और बिहार चले गए थे, तो यहाँ पर सारे लेबर्स को धीरे धीरे करके हम स्पेशल बसेस वगैरह करके लाए, क्योंकि ट्रेन चलती है लेकिन ट्रेन में उनको इतना लंबा लंबा वेटिंग मिलता है। और ट्रेन तो लेबर को लाके अभी हमने मतलब डिफरेंट लोकेशन पर साइट पर हमने उनको रखा है। तो एक टेंशन ये भी रहता है कि कल उनको कोई जो साथ में रहते हैं उनको किसी को हो जाए तो भी उनके लिए हम लोग थोड़ा प्रिकॉशन रखते हैं। दूसरा, स्टाफ भी अभी ऑफिस में ज़्यादातर लोगों को लैपटॉप दिया है, ये मतलब या तो पीसी उनके घर पहुंचा है। लिमिटेड स्टाफ से अभी ऑफिस में जितना भी ज़रूरत है 8-10 लोगों को बुलाते हैं। तो अभी एक ये इशू, दूसरा इशू ये आ रहा है कि 3-4 महीना स्लो डाउन हो चुका है, तो उसको रिवाइव करने में मतलब थोड़ा टाइम लगेगा और ये साल शायद टर्नओवर पे इफेक्ट आएगा। बाकी मेजर कोई मतलब चैलेंजेस नहीं है। हमारे काम में यही होता है कि अगर आपको मैन पावर मिल गया और मटेरियल मिल गया तो काम तो साइड पे फिर क्लाइंट ही और हमारा इंजीनियर करके लगवा देता है। अभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारे एम्प्लॉय जो साइट पे काम करे, लेबर करे, उसमें ये कोविड वोविड किसी को नहीं हो या कोई तो वो एंजाइटी रहती है करके। 2-4 केस आए भी थे लेकिन वो लोग सब ठीक हो गए, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो डर तो रहता ही है कि कोई ऐसा कोई 2-4 लोग एक साथ में चपेट में आ गए तो टेंशन रहेगा। और तरह कोई चैलेंज नथिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ, वो तो नहीं, प्रोजेक्ट जब स्टॉप हो चुके थे वो सब स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हमारी सारी साइटें चालू हो गई। कुछ साइट हमारी मई में चालू हुई, कुछ जून में हुई, कुछ जुलाई में हुई और अगस्त से पूरी सारी साइट चालू हुई। ओके। जितने भी मतलब हमारे काम चालू सब साइट ओपन हो गए, कोई इशू नहीं। सब जगह पे लेबर की शॉर्टेज है, वो हम लास्ट 1 महीना तो बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन अभी ऑलमोस्ट सब जगह पे वो थोड़ा मेंटेन हो चुका है। So I think would you say कि operationally आप जब भी you've taken care of everything to execute operational capability आपने maintain की, वो डेली आपको मतलब आपकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है डेली, मतलब कल से आज हम लोग कंटिन्यूसली वो प्रोसेस है। राइट। अदरवाइज क्या होगा कि आपका कभी कभी ऐसे सरप्राइजेस आता है कि आपका कोई सुपरवाइजर इंजीनियर जो है वो कहीं और चला गया। हाँ। आपके पास काम है तो कभी लेबर नहीं होती है, लेबर आ गया तो उनके पास काम मतलब राइट। जो ऑफिस का स्टाफ, इंजीनियरिंग स्टाफ बैकवर्ड, उनको प्रॉपर काम मिलना चाहिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेन करना पड़े, फाइनेंशियल फ्लो आपको मेंटेन करना पड़े, क्लाइंट को टाइमली डिलीवरी करना पड़े, वो सब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में आप मतलब कभी सो नहीं सकते कि हाँ अभी तो 30 साल हो गया आदमी मैनेज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक आपको मतलब आप काम ये कर रहे हो तो आपको एवरीडे आपकी जो मतलब सिस्टम है उसको ज़्यादा इम्प्रूव करना है। और डेली हमारा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग चालू ही रहता है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट, टर्नओवर कैसे बढ़ाने, मतलब सब कुछ साथ में ही आपको भागना भी है, साथ में सब कुछ मेंटेन भी करना है। राइट। ओके, सो I think that was a pretty insightful session with you. Thank you so much for giving us time. मुझे भी मतलब अच्छा लगा, मुझे भी आज बहुत कुछ पुरानी यादें करनी पड़ी क्या किया।
Thank you. I think our audience will really learn a lot from your experience. And बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को उसका बेनिफिट मिलता है, इट गुड। thank you so much.